Good morning, students. So we are learning chapter number 2 of your computer book, that is computer network. In last class, we have learned about why do we require computer network and how we can design computer network, how we can transfer information from one computer to another computer, and if we want to establish network, then what are the basic components we require. So all those things we have learned in last class, and today we will continue with the next topic, that is your networking devices, page number 23. So नेटवर्किंग डिवाइसेस मीन्स अगर आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, आपको दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, दो या फिर दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, तो कनेक्टिविटी के लिए हमें कुछ तो डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करें, कुछ हार्डवेयर डिवाइस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट. सो वो जो हार्डवेयर डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिशन और फॉर नेटवर्किंग, दोज devices are known as, or those equipments are known as networking devices. So we are having different networking devices available like modem, hub, switch, router, repeater, and gateway and network interface card. Okay, so now one by one we will have a detailed view of each and every networking device. So first one is your modem. Modem stands for modulation and demodulation. So if you have a telephone connection at home, so with the help of those telephone line and modem, we will be able to use network at home. Means आप networking कर सकते हो अगर आपके घर पे telephone lines है. You only require a modem so that you can access internet. Now modem stands for modulation and demodulation. Modem stands for modulation and demodulation. Now, why we are using this modulation and demodulation? Why we are using modem? So, as I am speaking, I am generating what kind of signals? Analog signal. But we want to transmit this data. ये भी एक तरह से डेटा है जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रही हो वाया फोन, मोबाइल फोन, लैप, मतलब जो भी आप यूज करते हो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, ऑडियो के लिए, तो आप जब बोलते हो यू जनरेट ऑडियो सिग्नल, बट ऑडियो सिग्नल वी कैन नॉट ट्रांसमिट विद wired or wireless connection. Okay, for transmission, this stands for transmission, TXN. Transmission, we require digital signal. Okay, so for that we require this modulation and demodulation. So if I am speaking and you want to hear, and at distance place we want to transmit those signal via wire or wireless connection, and for that we have to transmit those analog signal into digital signal so that we can transmit the data or speech. Okay, but at receiver side means जो उसको सुन रहा है वो क्या करेगा, वो डिजिटल सिग्नल्स को तो सुन नहीं सकता, तो जब उसके पास डेटा रिसीव होगा, अगेन वी हैव टू ट्रांसमिट दिस डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. तो पहले आपने उसको मॉड्यूल किया एनालॉग टू डिजिटल, दिस इज एट सेंडिंग साइड, and at receiving side we have to again convert this data from digital to analog. So this process is known as modulation and demodulation, and this is achieved with the help of modem only. Now, so short form modulator, demodulator, hardware device that convert digital signal from computer into analog signal to transmit data over telephone's line. Modem enables you to connect your computer to internet, as I have told you, via existing telephone line. Clear? Next device is hub. A hub is a network device that transfer communication data. ओके, हब भी क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस है. जितने भी डिवाइसेस हम पढ़ेंगे उन सबका एक ही काम है, डेटा ट्रांसफर करना. बस कोई फास्ट स्पीड से करेगा, किसी का सेंड करने का तरीका अलग होगा, बट एट द एंड द मेन पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी नेटवर्क डिवाइस इज टू ट्रांसमिट डेटा. नेक्स्ट, अब जो हब होता है दैट इज योर डंप डिवाइस. मींस वो क्या करता है, दरवाजे खुले हैं, पोर्ट खुले हैं, इन शॉर्ट अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले कि बिल्कुल ओपन है, डेटा आया तो सेंड होगा, वो चेक नहीं करेगा कि किसको सेंड करना है किसको नहीं करना. आप हब के थ्रू जो भी डेटा सेंड करोगे वो एज इट इज
सेंड होगा, हब इज नॉट गोइंग टू चेक इधर इट इज टू मीन्स एक तरह से एग्जांपल ले लो ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करते हो ना कि उस ब्रॉडकास्ट में आपने जितने भी लिस्ट में नंबर डाले, अगर आपने एक बार उसमें मैसेज टाइप किया तो अगर उसमें 100 पार्टिसिपेंट्स है तो सबके पास वो मैसेज आता है। ऐसे ही हब हमारा काम करता है नेटवर्क के अंदर। तो एक बार आपने हब से सपोज 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए, तो 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आप उसमें कुछ डेटा इंफॉर्मेशन सेंड करोगे तो सभी 10 कंप्यूटर्स पे या 100 कंप्यूटर पे सॉरी वो डेटा आपका ट्रांसमिट होगा अगर आपने हब यूज किया है। ओके, सो हब हैज मल्टीपल इनपुट। अब ऑब्वियस अगर ब्रॉडकास्टिंग करोगे तो उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी ज्यादा होंगे जिससे आप कनेक्ट कर सको, डेटा सेंड कर सको, तो मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज, अब हब्स क्या डम है क्योंकि इतना हमें थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो हब को हमने किससे रिप्लेस किया, स्विचेस से। स्विचेस भी आपके एक नेटवर्किंग डिवाइस है बट दे आर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू हब। वो क्या करेंगे कि जिनको बोला गया ना कि जैसे अगर आपने मैसेज डाला और उस मैसेज को आपको सिर्फ 20 लोगों को भेजना है, तो ऐसा नहीं कि नेटवर्क में 100 डिवाइस है उन सब पे वो डेटा ट्रांसमिट होगा, नहीं। स्विच क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे को डिलीवरी कहाँ कहाँ करनी है मैसेजेस की, सिर्फ वहीं पे ट्रांसमिट होगा। सो हब्स को हमने किससे रिप्लेस किया, स्विचेस से। दे आर नॉट सेफ एंड सिक्योर फॉर डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि जो हब थे वो सेफ नहीं थे, सिक्योर नहीं थे, और ऑब्वियसली अगर आपने एक डेटा सेंड किया तो बाय डिफॉल्ट वो 100 कंप्यूटर्स को सेंड हो रहा था जो भी कनेक्टेड है, इसलिए हम, तो वहां पे क्या डेटा आपका स्लो सेंड होता था और कंजेस्टेड, मतलब थोड़ा जो होता है ना भीड़ भाड़, मतलब अब 100 को एक साथ सेंड करना या फिर 10 को सेंड करना, ऑब्वियस है भीड़ किस में रहेगी, 100 वाले में रहेगी। तो जो हब हम यूज करते हैं नेटवर्किंग में उसमें हमारा कंजेशन ज्यादा होता है, मीन्स ट्रैफिक जाम हो जाता है। Next we are having switch. Switch is similar to hub. The only difference, switch is intelligent device. This is also having multiple input output port, but this one is intelligent as compared to hub, because switch what it will do, it will check the data and also the destination, means जिसको data send करना है. Okay, so hub forwards data only to one or multiple device that need to receive other than broadcasting, means ऐसा नहीं कि broadcast करता है, ये जितने को required है सिर्फ उन्हीं को ही send करेगा. A switch is aware of addresses of its ports and it, मतलब स्विच को नॉलेज रहती है कि हाँ किस एड्रेस पे डेटा सेंड करना है, किस पोर्ट पे डेटा सेंड करना है, इसीलिए स्विच हमारा क्या बेटर है एज कंपेयर टू हब. So you can see the diagram also. Multiple input output port, multiple input output. The only difference is which is intelligent as compared to hub. Next we are having bridge. Now bridge is used for different network. So in upcoming topic we will learn about different networks also. Then you will be able to understand this bridge and router and gateway. So bridge is a networking device that forms a single network by connecting multiple नेटवर्क हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लैन, वैन, मैन, डिटेल में हम अभी इस टॉपिक को कवर करने के बाद पढ़ेंगे. तो ब्रिज क्या होता है, स्विच और हब क्या करते हैं, सेम नेटवर्क में काम करते हैं, कि जैसे कि लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, तो हब और स्विच आपके सेम नेटवर्क में काम करते हैं, वेयर एज ब्रिज, राउटर एंड गेटवे डिफरेंट नेटवर्क, मतलब लैन टू वैन सेंड करना है, वैन टू मैन सेंड करना है. अब आप सोचोगे लैन वैन मैन क्या होता है. So after completing this, I will give you the detailed introduction to this network also. Just learn this thing from now. Bridge is used for connecting different network. Then router. Router is also a networking device. It also forward the data packets coming from one to another. And this one is also used for 2 or more different network as we have in bridge. A router receive analysis and forward the incoming packet. So router is also an intelligent device as compared to bridge. Bridge you can consider it similar to hub, because bridge भी क्या है आपका एक डम्ब है, वो सिर्फ कनेक्शन बनाता है कि हाँ मुझे डेटा सेंड करना है. Whereas router intelligent device है, before sending any data it will check the destination address, means जहाँ पे आपको डेटा सेंड करना है, then only it will send and broadcast the data. Okay, next we are having gateway. Gateway is also a networking device used for transmission of data between different network and distinct by और इसका difference क्या है कि राउटर की तरह ही है इंटेलिजेंट है, बस ये उससे और ज्यादा इंटेलिजेंट है. क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट करता है ट्रांसमिशन स्पीड को एक से ज्यादा प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरह से रूल्स और रेगुलेशन होता है नेटवर्किंग में कि आपको डेटा सेंड करना है.
तो गेटवे क्या करता, हर बार डेटा सेंड करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब जो भी पाथ्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अवेलेबल, उन सबको यूज करके डेटा को सेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी फिक्स रूल्स पे वो डेटा सेंड करेगा। देन इट कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर, मे बी वर्क अपॉन different network as we have studied in router and bridge. Gateway communicate using more than one protocol. So this is the difference between router and gateway. So gateway always use more than one protocol, where router depend upon single protocol. Next, repeater. Repeater is also an electronic device. As you can have a guess here, repeater means repeat करना. तो जैसे कि कुछ सिग्नल्स को आपको सेंड करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 10 किलोमीटर के बाद या फिर 10 मीटर्स के बाद उसके जो क्वालिटी है वॉइस की, जैसे कि अगर आप क्लास में बैठे हो तो जो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है उसको क्लैरिटी आती है, लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसको उतनी आवाज नहीं आती जितने फर्स्ट बेंच पे। तो ऐसे ही नेटवर्क पे होते हैं जो डिवाइसेस नियर बाय होती हैं, उनको तो कम्युनिकेशन में या साउंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, बट जो फार होती हैं, फार डिस्टेंस पे होती है, मे भी हो सकता है कि डेटा वहां तक सेंड होते होते उनकी क्वालिटी डाउन हो जाए। तो ऐसा ना हो तो हम क्या करते हैं कि बीच में एक डिवाइस लगाते हैं, जिससे क्या जो उसकी क्वालिटी डिक्रीज हुई है उस डिवाइस की हेल्प से वापस जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी थी तो वो सेंड हमारी होती है। सो रिपीटर इन शॉर्ट ये आपके क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, फिर एनहांस करते हैं क्वालिटी को, अगर आपको किसी डिस्टेंस पे, किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल्स को प्रोपेगेट करना है। So next we are having network interface card. We have learned about this NIC in last class also. Network interface card is built upon motherboard, and without NIC you will not be able to access network in your computer, laptop or any device. So it allows user to connect each other by using cable or wirelessly. So each and every networking device has their own properties, wire and wireless. And this one is inbuilt on motherboard, as we have studied yesterday also. Next. Yes, so this topic I was talking about types of network. So we are having basically three type of network: LAN, WAN and MAN. So we configure or categorize this network based on area, means कितने area में आपको network बनाना है, एस्टेब्लिश करना है। तो अगर आपको एक कमरे में या सिर्फ एक लैब में या फिर एक बिल्डिंग में नेटवर्क बनाना है, देन दैट नेटवर्क इज नोन एज LAN, local area network. Then if we will go further, metropolitan area network and wide area network. So wide area network for cities, मतलब पूरी कंट्री के लिए या फिर पूरी सिटी के लिए, and then metropolitan network with for city, and wide area network for international or all over the world. Okay, तो जो आप Google यूज करते हो, Google is an example of WAN. Okay, then we are using in city cable connection, example of MAN, and LAN we are using in computer lab. आपने कंप्यूटर लैब में जो ग्रे कलर का केबल देखा होगा जो सीपीयू पे अटैच होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, ईथरनेट केबल होते हैं, and those are example of LAN. Okay, now with the help of this explanation we will get a deep idea. So LAN stands for local area network. It covers only small geographical area, मतलब बहुत कम स्पेस को ये कवर करता है, geographical area. This type of network is limited to computer within building और adjacent means नियर बाय, जैसे एक ये बिल्डिंग है, नियर बाय एक और बिल्डिंग है, सिर्फ वहीं तक इनकी रेंज रहती है, क्योंकि इनकी रेंज रहती है 10 किलोमीटर मैक्सिमम. So size is limited up to 10 किलोमीटर because of very short distance. और अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो स्पीड क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, नेटवर्क भी अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस की कोई चांसेस ही नहीं है. तो दैट्स व्हाई इन लैंड वी आर हैविंग high data transmission speed. The expenses in setting LAN is very less. और इसको establish करना बहुत सस्ता है, चीप है एज कम्पेयर टू WAN एंड MAN, क्योंकि हमें सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस में ओनली विद इन 10 किलोमीटर हमें नेटवर्क स्टैब्लिश करना है. और ये आपका क्या है, डायग्राम है, एंड यू कैन सी ये वर्क स्टेशन आपके कंप्यूटर है. ओके, if you can see, so this one is your wireless access point, we called it WAP, and this is your hub or switch and laptop.
अगर आपको लैपटॉप पे कनेक्ट करना है, अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है, तो लैन हमारा आपका वाईफाई के लिए हमारे पास वेप है। अगर आपको लैन पे ना करके वायर्ड कनेक्शन करना है, देन वी आर हैविंग दिस हब एंड स्विच, एंड आई हैव टोल्ड यू हब स्विच आपके सेम नेटवर्क में यूज होता है, और ये सेम नेटवर्क मीन्स लैन कनेक्टिविटी के लिए हम हब और स्विचेस का यूज करते हैं। वर्क स्टेशन आपके कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, और एग्जाम्पल क्या है लैन के? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस बिल्डिंग एंड साइबर कैफे एक्सेट्रा। Next we are having metropolitan area network. So metropolitan area network cover a city area more than 10 to 100 kilometer maybe. Yes, 10 to 100 kilometer. Okay. So metropolitan area network covers geographical area, large geographical area as compared to LAN, and this type of network extended up to user in a city. MAN is basically interconnection between टू और मोर लैंस। तो देखो, जब आप लैन करोगे, लैन बिल्डिंग्स के हैं, अब 4-5 बिल्डिंग के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, देन वी रिक्वायर्ड मैन। तो ये एक तरह से एक या दो से ज्यादा लैन को कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं? मैन। दैट्स व्हाई वी हैव सी हियर टू और मोर लैंस। Distance is covered typically ranges between 10 kilometer to 100 kilometer. The speed of data transmission, obviously जितना distance बढ़ेगा speed कम होगी, so speed in MAN is less as compared to LAN. So you can see here this diagram, metropolitan area network, and this one is LAN, LAN, LAN. So we have connected different LANs with a single WAN. So as I am telling you, so WAN is an interconnection of different LANs. Next we are having, so cable TV network is example of मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपके घरों में जो डिश टीवी आ रहा है या फिर लोकल केबल आ रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन area network. Next we are having wide area network. Wide area network is a computer network that covers a wide geographical area when link different countries and continents. मैन मे बी विद अ स्टेट और कंट्री। सो वैन हमारा क्या है? कंट्री स्टेट, मतलब इंडिया से आपको यूएस एक्सेस करना है, यूके एक्सेस करना है। इन शॉर्ट, अभी जो आप वेब यूज करते हो ना, www, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। सो इंटरनेट, रेलवे रिजर्वेशन, जो भी आप जेनरिक एप्लीकेशन आजकल यूज करते हो, आप मूवी टिकट्स कराते हो या फिर आप रेलवे टिकट कराते हो, एयरलाइंस टिकट कराते हो, इंटरनेट पे आप कुछ भी एक्सेस करते हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया network. So you can see all our globe is here, different networks are here, and different stations are here. So this is combination of LAN, WAN and MAN. Okay, so now moving to the next topic, that is here. Oh, we have completed. Okay, so here we have completed our chapter. So this is your assessment part that we have already covered. We will cover in next class also. And in case of any doubt, you can tell me. Any doubts, anyone? Okay, so now take care everyone. Thank you.